So, hi everybody. I'm just waiting for few people to join. So today we have a very interesting topic. So I'm very excited about it, and for our guest for today, let's see how it all evolves and what we get to learn today. Hi Jinwan. Okay, let some more people join in. Okay, hi Pragya. Hi Shri. So, Asta. Hi Asta. I'm so happy to see you. Hi Arjit. Okay, so let me introduce first, about myself. I'm a life designer. I work with people to help them design their life, and I have been in the branding industry for the past 10 to 15 years. So I am also a brand designer, so I work on that as well. So basically my mission is to help people, especially the startups, to help them align their lives with their brands. So today we'll be talking about Vastu. Hi Annie. So today we are going to talk about Vastu and how it impacts how the energies and everything, all of that. We'll be discussing that with Pragya today. So how that affects our life and energies and our success and all of that. So our guest is an expert. So she'll be just joining in like a few minutes. Let's wait for her. Meanwhile, there are some more people joining in. Yeah, Annie, I'm waiting for Pragya. Okay, so meanwhile, you can just think about and of if any questions you have to ask her or whatever. She'll be actually sharing a lot of insights and lot of light on the topic. Hi, Sashli. So there are. Hi, Lokesh. I guess your name is. Hi, Pragya. Hi. Wow. Hi. Yeah. We were just waiting for you. Thank So you. I haven't introduced you, Pragya. So in fact, I would like you to share your journey because your journey has been quite interesting. You have been just to tell about her in short. She's learned biotechnology, then she's got into learning Vastu Shastra, and now she's a life coach as well. So it's like a different road altogether. So will you like to elaborate on that? Yeah, sure. So how you came to this and how the transition happened? Was it easy, hard, whatever? No, it was not at all difficult for me actually to convince my parents or my family, my husband. They were always supportive to me actually in these things. Many years ago, actually, when I was 7.5 years old, at that time, a tragedy. Actually, we all our whole family we gone through a tragedy that my mother she passed away due to cancer when I was just Oh my only God. 7.5 years old, and बाप रे. एट दैट टाइम क्या होता था जैसे हम बहुत लोगों को हम लोग बोलते हैं ना कि आप ये देखिए क्या गाइड करिए दैट इज देयर इन आवर फैमिली कल्चर सब लोगों को ये हाँ. पता है सो दे वेर जस्ट कुछ भी गाइड कर मतलब मे बी ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल जो भी वो अपना कुछ बता रहे हैं बेस्ड ऑन वास्तु दे आर टेलिंग के बिकॉज जस्ट बिफोर 3 or 4 years my parents they have shifted to a new house and after that these things happened actually. तो उनको ये था कि घर पे ये चीजें पोजीशन ठीक नहीं है ये ऐसा है तो तब से मतलब मेरे दिमाग में कहीं ये था कि व्हाट आर दिस थिंग्स और क्या सच में ये चीजें इतना इफेक्ट करती हैं किसी की लाइफ को तो वहां से मतलब मेरी शुरू से ही इन सब चीजों को जानने में एक क्यूरियोसिटी थी बट होता है ना भाई लाइफ टेक्स अवे मैं फिर पढ़ाई वढ़ाई करके जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने अपना स्टडीज का फील्ड चूज किया और ऐसे ही लाइफ निकल गया आगे देन
कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजों को जानने का मेरा वो इगरनेस था ही शुरू से. तो अगेन आई थिंक इन 2015 सडनली मैं एक दिन ऐसे सब चीजों के रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस एंड बहुत सारे मैं जो भी बुक्स रहते हैं वो पढ़ती थी. तो एक दिन एक वीडियो मैंने देखा जिनमें वो बता रहे थे कि घर का टॉयलेट का पोजीशन ऐसा कहाँ होने से इस तरह के डिजीजेस होते हैं उस घर में रहने वालों में. हाँ. तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात क्लिक किया कि क्या है ये, आई शुड फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स. सच में ये क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है, कोई रीजन है, या जस्ट सुपरस्टिशंस के जैसे लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड जब मैंने फिर इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखा, उन सब चीजों को अपने घर पे अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स मुझे मिले. क्योंकि जब हम अपने लिए अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, या जो भी हम इफ प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट और रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग सम चेंजेस, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम आगे लोगों को क्या बताएंगे या कैसे समझाएंगे. बराबर. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कोई आया घर के सामने खड़ा हो गया, वो आपको गाइड कर देगा कि आपका यहाँ वो गलत है, आपका वहां वो नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. तो मुझे हमेशा लगता था कि कैसे कोई जस्ट रैंडमली एक घर को देख के कैसे कोई बता सकता है. तो बराबर. इसके लिए मैंने इन सब चीजों को सीखना चाहा कि इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है या लॉजिक है वो क्या है. और आपका तो साइंस बैकग्राउंड है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आया रहेगा कि उसके पीछे का साइंस ढूंढना है. और अभी तो आप लाइफ कोच भी हो, राइट? आप लाइफ कोचिंग भी करते हो, तो आप ये दोनों कैसे ब्लेंड करते हो, लाइक वास्तु एंड लाइफ रिलेटेड? वो शायद ज्यादा एडवांटेज होता रहेगा ना, टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प पीपल. यस यस, मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सब चीजें शुरू की थी, तो एक जो मुझे लगा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, लोग इन सब चीजों के बारे में अगर खुद अपने माइंड में क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, या आपका कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. तो जब तक आपके माइंड में ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, या अगर आप किसी चीज को जानने के लिए, न्यू चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आप खुद ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे इन सब चीजों के लिए, तो फिर आप कैसे लाइफ में आगे प्रोसीड करेंगे. बराबर. तो इन दैट लाइफ कोचिंग पार्ट जो आता है, वो मुझे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प किया. बिकॉज एज आई नो यू आर ऑल्सो अ लाइफ डिजाइनर, सो आपको ये पता है कि ऐसी चीजें क्लाइंट्स के साथ कितना ज्यादा मुश्किल होती हैं, उनको ये चीजों को बताना या कन्विंस करना या जो भी है. यस. सो दैट्स व्हाई मैंने फिर लाइफ कोचिंग को भी एक्सप्लोर करना चाहा. मैंने उन सब चीजों को भी सीखना चाहा कि मैं कैसे थ्रू लाइफ कोचिंग ऑल्सो आई कैन हेल्प पीपल, कि कम से कम आपको ये तो क्लैरिटी रहे आपके माइंड में कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. आपके दिमाग में एक क्लियर रोड मैप रहना चाहिए. देन हम एज ए वास्तु कंसल्टेंट या एज एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आई कैन गाइड यू, कि मुझे ये पता है कि आपके मैं कहाँ क्या चेंजेस करवाऊं, कि आपको कहाँ से कहाँ वो चीजें, वो जर्नी लेके जाना है. जब आपको ही ये पता कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे कैसे, या आपको कहाँ जाना है, आपको करना क्या है, तो मैं कैसे आपको क्या हेल्प करूं. आप अगर नॉर्मली मेरे पास आके ये बोलेंगे कि नहीं आप मेरे घर का वास्तु कर दीजिए, तो मैं किस लिए करूं, क्या करूं. कुछ तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, कोई रीजन होगा, आपका कोई मोटो होगा, या कोई पेन पॉइंट होगा जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं. यस. लाइक तो आप so you actually help people get clarity also, like Yes. जो अगर किसी के पास वो क्लैरिटी नहीं है, तो आप वो भी उनको हेल्प करके फिर यू देन टेक इट द रूट ऑफ वास्तु एंड ऑल दैट. यस यस. सो मुझे जस्ट एक और पूछना था कि हमारा एनवायरमेंट का वी से कि इट इज ऑल एनर्जी एवरीवेयर, like we are energy, we are all surrounded by auras and all of that, and our house is an impact of our thoughts and energies, everything is there. Yes. So इसका environment में कैसे impact होता है? So according to you, what would you say about? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सुना होगा विजन बोर्ड के बारे में. हाँ. तो आपका घर ही आपके लिए 3D विजन बोर्ड है. वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन. अगर सिंपली आपको इस चीज को मैं समझाना चाहूँ, ईच एंड एवरीथिंग जहां आपने अपने घर में कोई भी चीज रखी है, या आपके घर में किसी भी चीज का प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट का, या कोई भी एक्टिविटी अगर आपका घर में जहां पे भी, जैसे
किचन हो गया, आपका टॉयलेट हो गया, योर बेडरूम, योर स्टडी रूम, एवरीथिंग जो जहां प्लेस है, तो हर एक चीज आपको, हर एक एनर्जी फील्ड जहां पे वो चीजें हो रही हैं वो उसको इफेक्ट करेगा ही। हर एक घर पे जो हम अकॉर्डिंग टू वास्तु 16 जोन्स मानते हैं, तो हर जोन का अपना स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। अब अगर उसके अकॉर्डिंगली वहां वो चीजें नहीं हो रही हैं, देन वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ही। यस। तो जब आपका घर ही आपके लिए 3D विजन बोर्ड है, अगर आप वहीं पे बैलेंस नहीं बिठा पाए, तो आप चाहे कितना भी विजन बोर्ड बना लीजिए, गोल सेटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर आपको वो, सच है। आप उस चीज को, उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने विजन बोर्ड बना लिया, एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु एक जोन होता है डिस्पोजल का। आपको पता नहीं आपके घर का वो जोन क्या है, कहाँ है, जो साउथ साउथ वेस्ट का जोन है, और आपने लेके अपना विजन बोर्ड वहीं रखा हुआ है। तो आपको लगता है कि आप अपने विजन बोर्ड पे चाहे कितना भी मेहनत करें, उसके लिए कोई भी काम, क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे? और Very इन true. चीजों को अगर हम और कस्टमाइज कर दें, तो वो एस्ट्रो चार्ट के बेसिस पे और ज्यादा हम उसको कस्टमाइज सोल्यूशन दे सकते हैं। बिकॉज हाँ। ये तो नहीं कि आपका जो एस्ट्रो चार्ट है वो मेरे से भी मैच होगा। आपके लिए वो आपका पंचिंग कार्ड है जो आप लेके आए हो, और आप जाने के टाइम अपने साथ लेके जाओगे। मेरा मेरे लिए है, जैसे हम दोनों का आई का रेटिना कभी नहीं मैच होने वाला, हाथ का हमारा फिंगरप्रिंट नहीं मैच होने वाला है, अकॉर्डिंगली ये भी है। सच है। कुंडली जो बोलते हैं लोग। तो अगर आपको कुछ भी चाहे प्रॉब्लम हो, कोई ज्यादा हाई टारगेट आपको अचीव करना हो, तो आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना है। पहले जैसे जो रॉयल फैमिलीज होते थे, वो क्यों, जो किंग रहते थे, किंग के अकॉर्डिंगली वो शायद उनका कुछ ऐसे हाथ की यहाँ कुछ मेजरमेंट्स लेके उसी के अकॉर्डिंगली उनका जो बैठने का जो उनका मेन जो वो दरबार में जो लगाया जाता था किंग्स के लिए चेयर, हाँ उन सब हाँ। जिसको डिवाइन प्रपोर्शंस कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें इतने पहले से एंशिएंट इंडियन साइंस में ये यूज होते आ रही हैं, जो मेटाफिजिक्स हम बोलते हैं। ओह। तो कोई तो इम्पैक्ट होगा इन सब चीजों का, तभी ये चीजें इतने सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं। ये काफी डीप है ना एक्चुअली। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर का जानते हैं। मुझे तो ये भी रिलेट हुआ कि इनफैक्ट हम कैसे घर में कुछ लाफिंग बुद्धा ला देते, रख देते, वाटरफॉल ला के रख देते, मनी प्लांट है, तो Yes. उसका भी कुछ साइंस होगा ना, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, या कुछ। अच्छा है, अच्छा ही हुआ कि लाफिंग बुद्धा का ये चीज पूछा। लाफिंग बुद्धा एक्चुअली लोग सोचते हैं ये वास्तु का पार्ट है, हम इसे कहाँ रखें, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। इंडियन वास्तुशास्त्र में लाफिंग बुद्धा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो चाइनीज उसको फैंशुए में यूज करते हैं। लोगों को क्या लगता है वो वास्तु से रिलेटेड है। जहां तक हाँ। वाटर फाउंटेन का बात हो गया, आई थिंक कल या परसों मेरे किसी पोस्ट पे ही, आईजी के पोस्ट पे किसी ने मुझसे पूछा था कि तो वाटर फाउंटेन हमें रखना कहाँ है, या वाटर फाउंटेन इज इट गुड और बैड? अगर वाटर हाँ। फाउंटेन, इफ यू आर प्लेसिंग इट इन द राइट जोन, राइट डायरेक्शन, क्योंकि वाटर का जो जोन होता है, जो वाटर जो एलिमेंट को सिंबलाइज, मतलब जो हम वाटर एलिमेंट बोलते हैं, वो कुछ जोन्स होते हैं घर के जिनको वो कवर करता है। तो अब अगर हम वहां पे रखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें बेनिफिट देगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और अगर हम उसको फायर जोन में रखते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप बताइए फायर में अगर पानी आएगा तो क्या होगा? हाँ, ये तो सब नॉलेज होता नहीं है हमें, यस, तो हम क्या लाइक आम लोगों को। यस, हमें नहीं होता, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम फायर जो जोन से डायरेक्शन है घर के, हम उसका भी एट्रीब्यूट जो है उसको लो कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। और जो वाटर जोन्स के एट्रीब्यूट्स होंगे जो हमें मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कुछ वास्तु में कुछ शुभ अशुभ, अच्छा बुरा नहीं है। आपको ये देखना है कि आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या हमेशा हम एक बैलेंस हाँ। क्रिएट कर पाएंगे? नो, कभी नहीं। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली नेचर ने भी बैलेंस करके रखा हुआ है हमारे लिए, हम्म। तो हम उन चीजों को छेड़े ही क्यों? जहां हमें प्रॉब्लम दिख रही है, जहां हमें आ रहा है, तब ना हम उन चीजों को रेक्टिफाई करेंगे। बराबर। और तो मैंने आपका बुक पढ़ा। यस, नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नो, लोगों को यही लगता है वास्तु
का मतलब है इंटीरियर डेकोरेशन। घर पे हम कहाँ क्या चीजें रखें, लोगों को वही कि आप ये टिप दे दो कि हम ये कहाँ रखें तो हमें अच्छा बेनिफिट रिजल्ट आएगा। जैसे आपने मनी प्लांट का भी बात किया, मनी प्लांट अगर हम नॉर्थ के जोन में रखें वो भी पानी में, तो प्लांट क्या होता है, वो ग्रोथ का सिंबल होता है, वो नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी उठ के जाता है, बढ़ता है। इसलिए हमें एज ह्यूमन बीइंग हमें भी अपने लाइफ में वो ग्रोथ चाहिए। और जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है वो होता है अपॉर्चुनिटीज का। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कुबेर आते हैं उत्तर की दिशा से। वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगा, तभी ना हम उसको मोनेटाइज कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मनी प्लांट को आप पानी में रख के नॉर्थ में रखिए। एंड अगर ब्लू कलर का वास मिलता है तब तो और भी अच्छा। ब्लू कलर के वास में पानी में आप मनी प्लांट्स रखिए। ओ, तो डायरेक्शन ध्यान में लेना जरूरी है बहुत। आपको अगर किसी भी डायरेक्शन के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेने हैं तो आपको पहले ये देखना है कि क्या आप उस चीज को राइट डायरेक्शन जोन में प्लेस कर रहे हैं। अगर आप करेंगे नहीं और आपको ये लगेगा अरे उसने इतना कुछ बताया, मेरे से पैसे ले लिए, काम तो कर लिया पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या हुआ। इनफैक्ट ये भी काफी कंफ्यूजन है ना कि लाइक अभी टॉर्टोइज होते हैं या कुछ, तो कौन सा फेंगशुई का है, कौन सा इंडियन वास्तु में है, ये भी लोगों को मेरे ख्याल से ठीक से अभी तक इतना क्लैरिटी नहीं है। और मुझे लगता है वो भी पता होना शायद, ये आप जो बोल रहे एलिमेंट्स बैलेंस करना, वो भी कुछ है ना। लाइक मैंने आपकी बुक में पढ़ा उस दिन कि देयर आर 5 एलिमेंट्स दैट हैज टू बी बैलेंस इन योर हाउस फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ओवरऑल। तो आप उस पे कुछ लाइट शेड मतलब कुछ बता पाओगे थोड़ा सा? या श्योर। एलिमेंट्स जो हम बात करते हैं, जैसे पूजा में भी बोलते हैं ना कि हम 5 एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जो फूल हो गए, अगरबत्ती हो गई, दिया हो गया, ये सारी चीजें। अब अगर हमें कोई पूछे कि यूनिवर्स भी हम बोलते हैं कि 5 एलिमेंट्स से वो बना हुआ है, पंचभूत, पंच महाभूत जो हम बोलते हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी भी उसी से बनी है। यस, हमारी बॉडी भी उसी से बनी है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। तो ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। यही 5 एलिमेंट्स हमारे घर पर भी प्लेस है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने लिए एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स अगर हम अपने लिए हैं तो हमारा घर हमारे लिए ही एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स की तरह काम करता है। हम जो मेडिटेशन करते हैं या हम ये सोचते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जीज को, जो भी हम चाहते हैं, अपने विशेस, अपने जो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स को हम अट्रैक्ट करके उन सब चीजों को पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम मैसेज देते हैं, हमारे लिए हमारा भी घर एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है। तो इसको भी अगर हम 5 एलिमेंट्स के थ्रू कैटेगराइज कर दे तो कुछ पार्ट वाटर एलिमेंट में आएगा, फिर कुछ एयर, फिर कुछ फायर, कुछ अर्थ एंड देन कुछ स्पेस। तो जैसे ही एक एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे आएगा, वो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता जाएगा। पानी जब जैसे वाटर एलिमेंट जब तक एयर में नहीं आएगा, सिंपल लॉजिक है, हम पानी नहीं देंगे पेड़ पौधों में तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं। पेड़ पौधे एयर एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं। और जब तक आप फायर जलाना है आपको, तो आप कैसे जलाओगे, आपको लकड़ी काटनी पड़ेगी। एयर एलिमेंट ही फायर को क्रिएट करता है। और जब जल के फायर एलिमेंट जो ऐश हो जाता है, वही अर्थ के फॉर्म में हो जाता है। अगेन वही अर्थ जो है, अर्थ से ही, जैसे जो स्पेस वो हम लोग बोलते हैं या मेटल बोलते हैं। मेटल्स क्या होता है, वही जो कि हम मिट्टी के अंदर से खोद के निकालते हैं, जो भी कुछ, वो चाहे प्रेसियस मेटल्स हो गए, जो भी मेटल्स हो गए। तो स्पेस या जो मेटल हो गया वो एलिमेंट, उसके बाद वो आगे जाके जो बारिश होती है वो कन्वर्ट होके हमारे पास फिर एज वाटर फॉर्म आता है। तो ये तो हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन। यस, तो सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। मतलब सब एवरीथिंग इज सो को रिलेटेड है ना ये सब। तो ये जैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। आप पानी आएगा, आग को बुझाएगा, आग आपका मेटल्स को काटता है। जब भी हम कोई मेटल के ऑब्जेक्ट्स को काटते हैं, फायर तो यूज होता है उसमें। मेटल्स जाके आपके जो हम
पेड़ पौधे काटते हैं, जो ऐश हो गया, कुछ भी जो भी ऐसे वेपन्स बनते हैं वो मेटल से बनते हैं जो पेड़ पौधों को काटते हैं, मतलब एयर एलिमेंट के रिलेटेड। फिर हाँ एयर एलिमेंट जो है, पेड़ पौधे जो है वो फॉर अर्थ एलिमेंट दे एक्ट एज ए नेगेटिव एलिमेंट, जस्ट ऑपोजिशन। क्योंकि जब हम एक बीज हम धरती पे बोते हैं तो वो जमीन को फाड़ता हुआ ही ऊपर आएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, वो एक ट्री का फॉर्म Yeah. लेगा। और फिर जब अर्थ एलिमेंट को हम ले जाके अगर आप वाटर एलिमेंट के एरिया में डालते हैं तो आप पानी और उसमें मिट्टी डाल दो, आप तो कीचड़ तो बनेगा ही, तो क्या वो स्ट्रेंथ रहेगा रिलेशनशिप में? जैसे कल मुझसे किसी ने इसीलिए पूछा था कि वाटर एलिमेंट कहाँ रखना है। अब अगर मान लीजिए आपको ये पता है साउथ वेस्ट में बेडरूम बहुत अच्छा होता है, आपने साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लिया, आपको पता भी नहीं है वो एग्जैक्टली साउथ वेस्ट है भी या नहीं, और वहां आप वाटर एलिमेंट रखे हुए हो, तो आप अगर खुद ही अपने घर में जो रिलेशनशिप के लिए इतना स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है साउथ वेस्ट, वहां पे आप लेके अगर पानी डाल रहे हो और आप ये बताओगे आके कि मेरे तो रिलेशंस अच्छे ही नहीं है, हम वाइफ हस्बैंड में प्रॉब्लम हो रहा है या पेरेंट्स और मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो, हाँ तो फिर एक्चुअली ये चीजें वही है, बस इनको एक साइंटिफिक वे में आपको ओपन माइंड होके जानने की जरूरत है। हाँ, कितना आपने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक अभी मुझे तो जब आपका सुन रही थी तो मुझे से क्लियर होने लगा कि समटाइम्स वी सी सो क्लैशेस हैपनिंग इन दी हाउस, या फिर कभी कभी वर्क एनवायरनमेंट में बट वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये घर के लिए, वर्क के लिए, लाइक किस पर्पस के लिए वो वास्तु है, वो उस पे भी काफी कुछ डिपेंड करता होगा ना। यस, वो हर चीज पे आपका डिपेंड करेगा। आप जब वर्क प्लेस में जाते हैं, आपके अंडर में क्या है, एक क्यूबिकल या एक रूम जो आपके लिए है। आप तो पूरे ऑफिस बिल्डिंग, अगर आप एक 10 फ्लोर के ऑफिस बिल्डिंग में या 25 फ्लोर के ऑफिस बिल्डिंग में, आपके पूरे बिल्डिंग आपके लिए, आपके अंडर में तो नहीं है। फॉर यू दैट इज द ओनली थिंग जो आपके जुडिडिक्शन में आता है। तो वहां पे आप अपना देखिए कि आपको वहां कहाँ अपना चेयर लगाना है, आपको अपना ऑफिस डेस्क या कंप्यूटर, आप जिससे भी काम करें उसको आप कहाँ रखोगे, जहां से कि आप प्रोडक्टिव आउटपुट अपने वर्क से रिलेटेड दे पाओ। बराबर। तो ये आपकी हमारी खुद की एनर्जी भी अफेक्ट होती है इन सब देखिए, एटमॉस्फेयर या यस यस यस, बिकॉज हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लोज हो ही रहा है। बोलते हैं ना, जहाँ वेयर एनर्जी फ्लोज अटेंशन गोज, जो बोलते हैं। तो अब अगर कहीं घर के Yes. किसी एक प्रॉब्लम से या किसी एक लाइफ के एक्सपेक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है हमें, तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा। तब आपको ये सोचना है कि ये क्यों आ रहा है। अर्थ एनर्जीज को हम स्टॉप नहीं कर सकते, वो तो हम कंटिन्यूअसली 24 आवर्स हमारे डेली लाइफ में वो चीजें हमारे साथ ही चल रही हैं। जैसे एक जोन होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन घर पे, वो होता है चर्निंग का जोन। उसको अकॉर्डिंग टू वास्तु उसका एट्रीब्यूट होता है चर्निंग का। चर्निंग मतलब जो मंथन बोलते थे ना पहले के जमाने में, जो समुद्र मंथन हुआ, चर्निंग होके फिर ना वहां से कुछ मतलब प्रेसियस चीजें हमें मिली आई हैं, तो उस जोन का एट्रीब्यूट है चर्निंग। अब अगर आप वहां पे अननोइंगली, आपका बेड है, बेडरूम है, आप वहां सो रहे हो और आप दिन रात लड़े जा रहे हो, झगड़े जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या हम रूम के बाहर रहते हैं, बाकी जगह रहते हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, हम रूम पे जाते साथ क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो कभी आपने उस चीज के बारे में सोचा है कि क्या है ये? हाँ, एक्चुअली कितना कितना डीप होता है ये सब। यस यस, हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि लाइक मुझे तो अभी तक सिर्फ इतना ही पता था कि वास्तु बोलती है तथास्तु। लाइक वो कहते हैं ना कि तो बस अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो सब लाइक वास्तु इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस काइंड ऑफ। बट दिस ये तो बहुत ही डीप है। आपका घर अगर एनर्जी के अकॉर्डिंगली अगर बैलेंस रहेगा, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली बैलेंस रहेगा, तो वो वास्तु पुरुष जो बोलते हैं ना, वो ऐसे ही आपको तथास्तु बोल देंगे। फिर आपको तो कुछ करने की जरूरत ये नहीं कि आप बिना कुछ काम किए आगे बढ़ जाओगे। बट आपके घर पे अगर वो बैलेंस बनी रहेगी तो आपका अंदर से एक अलग ही जील होगा हर चीज को करने का। आपको एक अपने लाइफ के लिए एक ब्रॉडर एस्थेटिक विजन दिखेगा कि हाँ मुझे ये करना है। बराबर। वो कहते हैं ना कि किसी घर में हम जाते हैं वी फील सो गुड, किसी भी लाइक ऑफिस में,
एंड समटाइम्स वी जस्ट डोंट फील लाइक हमें उधर से निकलने का मन करता निकलने है, का मन तो करता ये शायद वही वाइब्स। इनफैक्ट हम जब शॉपिंग पे भी जाते हैं बहुत बार, स्पेशली लेडीज जो लोग आज सुन रही हैं वो ये चीज नोटिस कर पाएंगी, हम घर से सोच के जाते हैं कि आज हम ये अपने लिए लेके आएंगे, और शॉप में गए, शोरूम में गए, पर तब ऐसा कुछ होता है कि हमें उस दिन कुछ भी पसंद नहीं आता, या शायद जहां हमारी नजर जाती है हमें वो आइटम्स पसंद नहीं आती है, जो भी वो चाहे ऑफर में हो कुछ भी हो, हम बिना कुछ लिए आ जाते हैं किसी दुकान से या किसी शोरूम से। और कभी ऐसा होता है कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ चाहे, हम ऐसे ही कहीं घूमने गए और किसी शोरूम में कोई चीज देखी, हमें लगता है नहीं ये तो लेना ही लेना है, चाहे वो हमारे यूज में हो या ना हो। तो ये सारी चीजें कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है, यही है बात कि हम चाहे। शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है प्रज्ञा, अभी ठीक है? नाउ यू थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है, एटलीस्ट मेरे यहाँ। अभी अभी ठीक है। नाउ इट्स ओके। या नाउ इट्स ओके, थोड़ा सा तो ब्रेक हो हम रहा था। कभी यस हम कभी कभी इसीलिए किसी भी दुकान में, शोरूम में गए और हम बहुत इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं अननोइंगली, और हम ये सोचते हैं यार हम तो सोचे ही नहीं थे कि हमें कुछ लाना है, फिर हम उस शॉप से इतना कुछ कैसे उठा के आ गए। तो एक्चुअली वहां पे होता वो है। क्या एक्ट करे, वहां पे वो क्या चीज एक्ट कर रहा है कि आप वहां से इतना कुछ लेके आ गए और किसी और दुकान से आपने कुछ भी पसंद नहीं किया। सच है, सच है, एकदम सच है। तो वही तो कितना कुछ है, लाइक हमें तो इतनी आइडिया ही नहीं होती, हम तो कितना सुपरफिशियली देखते हैं ये सब चीजों को। आप कुछ अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से कुछ टिप्स या ऐसे कुछ एग्जाम्पल शेयर कर पाओगे जिससे हमारे ऑडियंस को ये आइडिया आ जाए कि हाउ इट रियली इम्पैक्ट्स एंड हाउ इट कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, स्मॉल चेंजेस विच यू डिड लाइक इन योर लाइफ और क्लाइंट्स के लाइफ में। अगर एक बहुत जो अभी अभी रिसेंट नहीं बोलूंगी, काफी वक्त हो गया, बट यस एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था। मैं कुछ टाइम पहले, ये शायद बिफोर 3 इयर्स या 4 इयर्स के पहले का बात है, कि मेरी फ्रेंड के घर से आ रही थी मैं, एंड उस दिन क्या हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद से जो वुंड्स, इतना ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं चोट, बट यस उससे तो मैं रिकवर हो गई। बट जो मेन प्रॉब्लम था उसके बाद, मेरे राइट साइड के हिप से नीचे वाला पोर्शन वो हमेशा बहुत पेन होने लगा उसके बाद। एंड फॉर दैट ऐसा होता था, अगर मैं फ्लैट होके बेड पे सो रही हूँ तो ठीक है, बट वंस अगर मैं उठना चाहती हूँ तो वो मेरे लिए इतना ज्यादा पेनफुल रहता था कि मैं बता नहीं सकती। मेरा तब बेबी भी जो था वो बहुत छोटा था, आई थिंक 1 ईयर हो रहा था ऐसा कुछ। तो अगर मैं देख रही हूँ वो बेड से पलटता हुआ गिर भी रहा है तो मैं उठ के उसको पकड़ नहीं पाती थी, मेरे लिए इतना पेनफुल रहता था। तो मेरा ये रहता था कि सुबह एक बार अगर उठ गई मैं, तो उसके बाद मैं सीधे रात को सोगी, मुझे उसके बाद लेटना ही नहीं है कहीं, बिकॉज वो एक टाइम मुझे बहुत पेनफुल लगता था। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने काफी सारे डॉक्टर्स, सब मतलब शायद मैं कहूँ तो कहीं नहीं छोड़ा मैंने, ऐसे जहां जहां कोई टेस्ट, यहाँ तक कि सिटी स्कैन, MRI, सब कुछ मैंने करवा लिया, और जहां दिखा रहे हैं जाके हर डॉक्टर ये कह रहा है कि मेडिकली सब कुछ परफेक्ट, मेडिकली कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं जहां के हम आपको कुछ मेडिसिन दे या कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट करें। एंड इन दिस यही टाइम के ड्यूरेशन में तो ये सारी चीजें मेरी चल ही रही थी, तो सीख ही रही थी मैं। तो एक दिन मैंने, जो आपको पता होगा साउथ इंडिया में मरमा पॉइंट्स पे जो मसाज होता है बॉडी का, वो होते हैं ना एक पर्टिकुलर कुछ बॉडी में मरमा पॉइंट्स होते हैं, तो उन जगहों को मसाज करते हैं, वो जो मरमा पॉइंट्स मसाज करने से कुछ एक्यूप्रेशर, नो 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 एक्यूप्रेशर टाइप्स। एक्यूप्रेशर अलग है, एक मरमा मसाज होता है, वो जनरली केरला में बहुत ज्यादा फेमस होता है, आप गूगल पे सर्च करिएगा। ओके, तो अच्छा, बॉडी में भी ऐसे कुछ मरमा पॉइंट्स होते हैं, कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स, जहां अगर हम मरमा मसाज लेते हैं तो वो जो भी ब्लॉकेज या जो पेन रहता है वो सब दूर हो जाए। यही चीजें हमारे घर पे भी अकॉर्डिंग टू वास्तु, ये चीजें घर पे भी काम करती हैं। हमारे घर पर भी ऐसे कुछ मरमा पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हर जगह पे घर के कील नहीं ठोकनी चाहिए। तो
ये ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह आप अपना घर का नक्शा लेके बैठो, मर्मा पॉइंट्स ढूंढ के कील ठोको, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, बट ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपके घर पे जो मर्मा पॉइंट्स है वहां पर अगर अननोइंगली आपने कोई बहुत हेवी सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, अगर या वहां पे कील आपने ठोक दिया है, तो वो क्या आपके घर पे जहां वो प्रॉब्लम है वो आपके बॉडी के उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा। आफ्टर ऑल ओह आपका बॉडी और आपका घर, ये सब सबकॉन्शियस माइंड हमारा, वो तो इन सब चीजों से सिंक है। ओह तो या मैंने मेरे घर का उस अकॉर्डिंगली एनालाइज किया उसको, हर चीज, तो मुझे जितना समझ में आया तब कि मेरा बेड आ रहा था एक मर्मा पॉइंट पर ही। एंड आफ्टर शिफ्टिंग माई बेड, जो मैं पिछले 3 साल से मैंने इतने पैसे मेडिकल फील्ड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिकल मत जाइए या आप इन सब चीजों को, ऑब्वियस बात है पहले आप मेडिसिन से, डॉक्टर्स, ये सब ट्राई करिए, बट ऐसा भी कुछ चीज होता है जो हमारे घर से भी कभी कभी रिलेट कर जाती है, जो कि साइंस या डॉक्टर्स के बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, कुछ सीरियस कंडीशन रहता है, डॉक्टर भी तभी हमें ये बोलता है कि हमने अपना काम कर दिया, बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो उनको भी पता है कि कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं। हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि साइंस हमेशा 100% रिजल्ट देगा ही हमें। इससे ना मुझे एक जस्ट ऐसे मन में आया पूछने का कि अब घर में देर आर मेनी फैमिली मेंबर्स, यस, सो देर इज अ लीड फैमिली मेंबर एंड देन अदर्स, लाइक जैसे जो पुरुष होता है घर का, या ही इज द मेन, अभी भी हमारे इंडिया में वी कंसिडर लाइक, और मेनली समटाइम्स वुमेन इज द होम मेकर काइंड ऑफ। तो ये किस पे, और बच्चे होते हैं तो कैसे किस पे अफेक्ट होगा ये, और दूसरी बात कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम काफी कम टाइम घर में स्पेंड करते हैं और बहुत सारा टाइम हम बाहर होते हैं घर के, फिर भी इट अफेक्ट्स अस, और कैसे, लाइक इन हाउ मच, तो उस पे कुछ बता पाओगे? आप घर पे सो रहे हो, आपकी चीजें घर पर हैं, आप चाहे घर से बाहर रहो, घर तो आप ही ने बनाया है। आपका सबकॉन्शियस, आपको भले ही कॉन्शियसली ये ना पता हो कि आपके घर में कहाँ क्या चीजें रखी है, बट योर सबकॉन्शियस नोज एवरीथिंग। कभी ओह कभी आपको होता है ना कि कहाँ क्या रख दिया आपको याद नहीं आता, बट सडनली अचानक आप देखते हो कि हाँ किसी दिन आपको याद आ गया। वो कैसे? भले ही आपको कॉन्शियसली याद ना हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में बिहाइंड योर माइंड कुछ तो है जो हर चीज को ट्रैक करके रख रहा है आपके दिमाग में। और जहां तक घर का वास्तु का बात हो गया, यस, अर्निंग मेंबर के अकॉर्डिंगली अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यस, उसमें आप जो घर का अर्निंग मेंबर है उसी के बेसिस पे इन सब चीजों को करिए, क्योंकि एट ओके द एंड ऑफ द डे वही आपके घर ब्रेड बटर वही लेके आने वाला है। अच्छा बट यस, ओके ओके वंडरफुल जो बेसिक वास्तु है, बेसिक जो बैलेंसिंग बोलते हैं हम लोग, जो बेसिक जो चीजें कहाँ क्या रखनी चाहिए, वो जो बेसिक बैलेंसिंग होती है, वो तो हम घर पे जो करेंगे, वो अगर बैलेंस रहेगा वो घर पे हर किसी के लिए अच्छा है। चाहे वो उससे एक, बहुत सारी डिफिकल्टीज तो उसी से क्लियर हो जाती चाहे होगी। पूजा रूम हो गया या चाहे बच्चों के स्टडीज से, क्योंकि बच्चों के स्टडीज से अगर मैं बोलूंगी तो जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन रहता है उसका एट्रीब्यूट ही होता है जो आपके स्किल्स को एनहांस करेगा। तो इन सब, अभी अगर हम बच्चों के केस में देखें तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि बच्चा ऐसी जगह पे बैठ के पढ़े जहां वो पढ़ना चाहे, जहां उसका मन लगे और वो उसके स्किल्स को एनहांस कर पाए, वो रिटेन कर पाए जो वो पढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो भी हर जोन्स के एट्रीब्यूट होते हैं, अगर हम किसी और जगह पे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा उस जोन के एट्रीब्यूट को लेगा ही लेगा, अगर वो लॉन्ग टाइम पे लॉन्ग ड्यूरेशन में कहीं रहता है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों में, या और एक बहुत तेरा कॉमन आवाज क्वेश्चन, अभी ठीक है? कुछ कनेक्शन। I can't hear you, Pragya. Just a minute. Give me a second. या श्योर, बोलो, अभी शायद आएगा। या अभी सुनाई दे रहा है? नाउ हेलो यू, या नाउ यू कैन हियर मी, आई कैन ओके हियर यू, या कुछ कनेक्ट, हाँ नाउ इट्स ओके ओके। सो
Yeah. Pradnya, I just read your book and it's fabulous. Like जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ कुछ वास्तु रिलेटेड होगा. That was what I was thinking. But you have written it in so much depth. Like so, it is so crisp. Like बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन crisp Yes, and so to the point है. यस मैंने उसमें वही ये It's जो very जो कुछ beautiful. मैं आपसे कह रही हूँ बस इसी बेसिक आइडिया को मैंने दिया है, ताकि कोई अगर बुक पढ़े तो उसको ये नॉलेज हो कि ये चीजें एग्जैक्टली क्या इफेक्ट करता है. कोई हम टिप्स तो कुछ भी दे सकते हैं, किसी को कितना भी टिप्स दे दे, लेकिन वो टिप्स तभी काम आएगा जब वो प्रॉपर जोन में प्रॉपर डायरेक्शन में आप उन चीजों को प्लेस कर रहे हो. बहुत से लोगों का पता है दैट यस हम तो रेंटेड अपार्टमेंट्स में हैं, हम तो कंपनी एकोमोडेशंस में हैं, तो हमें वास्तु कैसे इफेक्ट करेगा. अरे बाबा घर तो आप ही का है, घर तो आप ही ने लिया है. घर पे रहे तो आप रहे हो, आप रहे हो, खाना आप बना रहे हो, सो आप रहे हो, आपकी सारी बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं. आप कब अगर रिटायर्ड होगे, कब अपने लेट ओल्ड एज के टाइम पे कहाँ आप अपना घर बनाओगे, वहां अपना वास्तु परफेक्ट घर बना के जाके रहोगे, तब तक तो आपने अपनी पूरी जिंदगी काट ली. सच है. यही तो वो टाइम रहता है जब आप अपने लाइफ को कुछ एनहांस कर सकते हो. वहां आप एक अपने लिए एक हाइट, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो जिसको आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो. बहुत इम्पोर्टेंट है शायद यही. वरना लोग वही साइकिल में रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता कि गलत हो क्या रहा है. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना सब कर रहे हैं. इन सब चीजों का अभी तक इतना अवेयरनेस तो है नहीं. दैट इज वेरी ट्रू. यस. एंड बहुत सारी मिथ्स है ना इसके. आपके बुक भी, योर बुक इज ऑल्सो ऑन बेस्ड ऑन दैट नेम ओनली, मिथ्स ऑफ वास्तु. आपका टाइटल में ही आपने मेंशन किया है, तो आप कुछ एड्रेस करना चाहोगे कोई मिथ्स, लाइक विच कॉमन मिथ्स जो आपने तो काफी सारे लिखे हैं. आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो तो मैं बताऊंगी सबको, बट आप कुछ थोड़ा सा बता दो, लाइक व्हाट आर द मिथ्स अराउंड वास्तु. एंड सबसे बड़ा मिथ तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि आप चाहे रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहें या आप एकोमोडेशंस में रहें, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. मे बी आप अगर एक न्यू प्रॉपर्टी भी बाय कर रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि क्या उस प्रॉपर्टी का जो एंट्रेंस है, चाहे वो फ्लैट हो, डुप्लेक्स हाउस हो, कुछ भी हो, आप जो भी लें, वो प्रॉपर्टी का क्या एंट्रेंस पॉजिटिव है. बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि ईस्ट फेसिंग घर है, वेस्ट फेसिंग घर है, नॉर्थ फेसिंग घर, ये अच्छा है, वो बुरा है. अकॉर्डिंग टू वास्तु 32 एंट्रेंसेस होती हैं और उन 32 इतना ज्यादा प्रिसाइज होता है. आप अगर एक घर का टू द स्केल प्लान बना के उसको प्रॉपर ग्रिडिंग करके उस पर काम करें, तो आप जितना ज्यादा एक प्रिसाइज नॉलेज चाहेंगे, आप हर एक चीज घर का लेके आप उन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं. तो जब भी आप कोई घर, चाहे नया हो या कहीं आप रहने जा रहे हो, रेंट पे हो, कंपनी एकोमोडेशन, अगर इफ पॉसिबल तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए कि आप जिस घर में जा रहे हैं क्या उस घर का एंट्रेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव. और वो तभी पता चल जाएगा जब आप उस घर के जो टू द स्केल प्लान पे आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बोलेंगे काम करने के लिए. तो इतना ज्यादा प्रिसाइज होता है बिकॉज एंट्रेंस जो होती है 32 एंट्रेंसेस में से 8 एंट्रेंसेस होती हैं पॉजिटिव, 2 और पॉजिटिव एंट्रेंस है, बट दे आर केस स्पेसिफिक. मतलब वो आप अकॉर्डिंग टू अ हॉरोस्कोप, चार्ट, आप ये चीज देख सकते हैं, या जो क्लाइंट है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उन चीजों को लेके आप देख सकते हैं. और बाकी जो एंट्रेंसेस होती है वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं. तो अब अगर आप, और सबसे ज्यादा इफेक्ट एक घर का एंट्रेंस ही आपके लाइफ में देता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. और उस घर के एंट्रेंस का जो भी इफेक्ट है वो उस घर में रहने वाला बंदा खुद ही अपना, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं, या पूछना छोड़िए, आप अगर उस घर का नक्शा देखें, आपको पता चला ये एंट्रेंस आया है, हमें नंबर में पता चल गया, चलो हाँ इतना नंबर का एंट्रेंस है इस डायरेक्शन का, आप उसको बोलो क्या ये फेस कर रहे हो, वो खुद मुंह खोल के आपको बोलेगा कि हाँ मेरी लाइफ में यही है, ये चीजें इतना काम करती हैं. मतलब हम सिर्फ देखते हैं ईस्ट में है, नॉर्थ में है, ले लो, या फिर बराबर है. इट्स नॉट उतने में सीमित नहीं है ये. नॉर्थ में 2 इससे डायरेक्शन भी काफी डिटेल में देखना जरूरी है. N3 N4 नॉर्थ में 2 एंट्रेंसेस है जो पॉजिटिव है,
ईस्ट के डायरेक्शन में 2 एंट्रेंसेस हैं जो E3 E4 पॉजिटिव है, साउथ में 2 एंट्रेंसेस है जो S3 S4 पॉजिटिव है, वेस्ट में W4 W3 2 एंट्रेंसेस है जो पॉजिटिव है। तो आपके घर, आप बोलो ईस्ट का डायरेक्शन में कौन सा एंट्रेंस आ रहा है वो तो पता कर लो। ईच एंड एवरी डायरेक्शन यू विल गेट 8 एंट्रेंसेस फ्रॉम E1 टू E8, तो उसमें से आपका कौन सा है? हाँ। लेकिन इट इज पॉसिबल ना, देर आर सम रेमेडीज ना, कि किसी को अभी कोई घर ऑलरेडी रह रहे हैं तो देन यू हैव आइडिया। यस, क्योंकि देखिए आजकल के लाइफ में हम कंस्ट्रक्शनल चेंजेस कर नहीं सकते। जैसे फ्लैट्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, कुछ भी, तो इन सब जगहों पे हम कैसे कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करें? वो तो इम्पॉसिबल है। तो जहां हम हैं उन्हीं चीजों को लेके हम क्या रेमेडीज के थ्रू एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं या उस नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं, हम बस यही कर सकते हैं। प्रज्ञा, यू हैव सो मच नॉलेज एंड मुझे तो पता नहीं और क्या क्या कितना देर आपसे बात करूं, कमी है। और यू हैव सो मच टू गिव एंड शेयर पीपल, बट वी हैव लिमिटेड टाइम सो वी कैन नॉट कंटिन्यू टू मच। तो आई वुड जस्ट से many people, there are many people तो अभी भी आके आ रहे जा रहे, तो anybody wants to ask anything to Pragya, please feel free. She's got such a bundle of knowledge. Don't miss this opportunity. किसी को कुछ पूछना है? मुझे तो काफी कुछ सीखने मिला आज with this short conversation. I'm getting back to you for sure. I would suggest बाकी लोग भी, like if you want to get in touch with Pragya and consult her, please feel free. उसका DM handle I have shared already and I will also share it again. And I have to tell you that Pragya has written a new book and it's all about myths and these 5 elements, all these directions and everything that I just read it. It's fabulous. And it is not just about your vastu, it also how you the title of the book, like basically उसने जो लिखा है उसमें she is mentioned that how to align your living space with your universal space to attract abundance in your life. So it is so beautiful. You get the glimpse of it, right? So it's all about aligning your life with all your desires and dreams. So it's just perfect. और किसी को कुछ consult करना है तो is the person, because she is not just a vastu expert, she is also a life coach and she is very well educated. So you get a holistic perspective and suggestions for you. So please, she is the person to go to and please consult her and get back to her. If you need any help, DM her or you can even DM me. So I can help you with her details. Thank you. Pragya, I guess network issue है क्या? थोड़ा break हो रहा है. I can hear मुझे you. नहीं लग रहा है किसी का कोई question है अभी तक तो. Nobody's asked anything as of now and I guess we are out of time also, right? Yeah, sure. Okay, thank you. Thank you so much. No problem, no problem. Chalo, okay, then we'll wind up. Thank you so much and please get in touch with Pragya or me if you want to. She's got a bundle of lot of knowledge and nuggets to share with you. You can get her consultation. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Yeah, bye-bye. Pragya, thank you so much for being here. It's a pleasure to have you on this platform and I'm so blessed to have you today. Thank you. Thank you so Bye-bye. much. Yeah, bye-bye.